Bismillahirrahmanirrahim. It is with the deepest sense of gratitude to the Almighty Allah that we are conducting online classes for students who are not here, who are not practically in the class. And we are also giving physical classes to the bunch of students we are having here in the class today. And it's a continuous process. We have been delivering wonderful classes, and they are a source for inspiration for all the language learners. And they can learn something about grammar. The Back to Basics playlist is there in our YouTube channel, Back to Basics. YouTube channel is Genius Institute Lahore. You would find a playlist there, Back to Basics. There are 53 lectures. If you happen to just attend those classes there online, you will know the basics of language structure. You know, there are few things which should be learned for language learners. And number one is all about if you want to become a confident, fluent speaker, you'll have to join the Genius Institute Lahore, because here we give you the training of becoming a good speaker, a good presenter. You start speaking good, you have a bit of fluency, because we give you some time for conversation. That's called a gossip time. And moreover, we conduct classes. For example, we give you an opportunity of taking part in presentations, and we engage you in conversational practice. So this is also important. Number three is grammar exercises and activities. We conduct off and on. There are certain days specified for grammar activities. So we conduct grammar classes. And apart from grammar, we have vocabulary sessions. Sometimes we learn the formal academic words, and sometimes we learn, the phrases and general expressions which can beautify your language, conversational expressions. Those kind of conversation expressions are going to be learned or practiced by us today here in the class. And we also have some accent and pronunciation development classes in which we try to just close to be native speakers. So this is a very comprehensive class in which we have multiple activities, and all these things together can give you a wonderful vision to speak confidently and fluently. And moreover, they boost your morale, and we uplift your confidence when you keep on participating in all these activities which we give you here, which we provide the chance of practicing here in the spoken English class here at Genius Institute Lahore. So dear friends, this was a bit of introduction, how we are proceeding in language, how we are making you the kind of persons you want to become here at Genius Institute Lahore. So today we are going to it's Monday. So the first day breaks with some idiomatic expressions or phrases which can be used in spoken English. They will beautify your language. It's beautification. It's a beauty parlor of the language. So in which we give you the training to become confident, fluent speakers, and English people or Americans or the native speakers, for example, use sometime these wonderful expressions to glorify, beautify the language, and to give it a native touch. We have to use these examples at times, not, in every sentence, because it will be difficult for the listeners to understand, but gradually and bit by bit, after learning these things, you would start using it, and after using them, you will become a confident, fluent speaker. This is what we aim at. We don't have
stereotyped, dry spoken English class in which only the grammar is being taught. It becomes very dry sometimes. And we have multiple exercises, activities, engaging one, and we also involve you in every kind of activity. And this is called interactive methodology of learning. So we here give you an opportunity of tremendous interaction, and you are interacting with a teacher. Sometime you are interacting with another student, and so on and so forth. God bless you. We are going to learn today wonderful expressions, and I hope all the online learners who are our students, actually the online students, they will also appreciate it a lot. They will also have a lot of exercise to cover. And if you just listen to all these expressions, they are going to make a difference in your language. Best of luck and bit of a good round of applause for everybody here in the class today. Yes, over to you guys and girls now. Your first two expressions, please. My first phrase is keep a low profile. Its Urdu meaning is Keep a low profile. Keep a low profile. Yes. its Urdu meaning is Don't be in a hurry. Just take your time as if you are teaching. You are really teaching the students, online students. You're all teachers and trainers. So with the help of you people are learning. So please be very comfortable when you are talking about your expressions. All right, please. its Urdu meaning is tawajjah se bachna. And its English meaning is to avoid attracting attention. Tawajjo se bachna, to avoid attracting attention. So it's wonderful expression, keep a low profile. So keep a profile को जरा कम रखना मतलब avoid करना. To एक होता है to be in the limelight. Limelight तो वैसे भी आपका बहुत ही favorite एक one of the brands है for the girls, ladies. Okay, to be in the limelight में होता है तवज्जो का मरकज बनना. Or to be to have a low profile means तवज्जो से to avoid attraction of the people. कभी आप तवज्जो का मरकज बनना चाहते हैं जब आप खुश होते हैं, जब आप अफसुर्दा होते हैं तो तवज्जो आप नहीं हासिल करना चाहते, बचना चाहते हैं. So it all depends on the circumstances. All right. And the use of this word in sentence is he kept a low profile after the controversy. हाँ, ये he kept the low profile after the controversy. इसका pronunciation क्या है? Controversy, not controversy. हाँ, controversy. He kept the low profile, वो तो वजह से बोला after the controversy. आप पता है जब कश्मकश होती है और ऐसी कोई हिजान अंगेज बात होती है तो आप अवॉइड करते हैं. कंट्रोवर्सी का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन देखिए क्या है. कंट्रोवर्सी उर्दू मीनिंग इसका एडजेक्टिव है कंट्रोवर्शियल, जो मुतनाज़िया. शाबाश, बहुत अच्छा बोला है. कंट्रोवर्सी तनाज़ा. ऑलराइट जी, शाबाश. इन उर्दू इट्स मीनिंग इज तनाज़ा के बाद इसने तवज्जो से बचने की कोशिश की. Okay, thank you. My second phrase is go the extra mile. Go the extra mile. Number 2. पता चलता है आप go the extra mile को थोड़ा सा इजाफी काम करना. इसका मतलब क्या है जी? go the extra mile. Its उर्दू मीनिंग इज इजाफी मेहनत करना. इजाफी मेहनत करना, थोड़ा ज्यादा चलना. Alright. अब जब भी कोई काम करते हैं, sometimes you go the extra mile means थोड़ी इजाफी मेहनत करते हैं आप उस पर. और आप देखिए हमेशा हार्ड वर्क ब्रिंग्स इट्स ओन रिवॉर्ड. मेहनत अपना रिवॉर्ड लेकर आती है. और कभी भी कोई भी अगर आप टाइम स्पेंड करते हैं, एनर्जी स्पेंड करते हैं, तो वो फ्यूटाइल एक्सरसाइज नहीं होती, बल्कि वो इट बेयर्स फ्रूटफुल कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स. इसके बड़े ही फलदार इसके असरात होते हैं और आपको नतीजा मिलता है. राइट, वेरी गुड. गो द एक्स्ट्रा माइल. Its English meaning is to put in extra effort. Put in extra effort. English meaning to put in extra effort.
Yes. And the use of this phrase in sentence is she always goes the extra mile to help her students. All right. वो She हमेशा- always, the teacher, actually, the teacher always goes the extra mile to help the students to help the students को मदद करने के लिए वो थोड़ी इजाफी मेहनत करता है टीचर. And you know, teachers should be like that. अस्तित्व वैसे होना चाहिए to assist the student or if they put an extra effort, आपको पता है मेहनत कभी रायगा नहीं जाती है. तो इसलिए इंशाल्लाह स्टूडेंट्स के साथ भी हमारा भी कोऑपरेशन ऐसे ही होता है स्टूडेंट्स के हवाले से. थैंक यू फॉर बोथ ऑफ योर वंडरफुल phrases. Phrase number 3 please now. My first phrase is take a rain check. Take a rain check. Take a rain check means Its English meaning is to postpone something. अच्छा ये postpone में T silent है. Postpone. To postpone something. And its Urdu meaning is किसी चीज को मुअख्खर करना. किसी चीज को मुअख्खर करना, ताखीर में डाल देना. उसको उसने कहा था ना, अनवर न डाल काम आज का कल पर, मेरे हबीब तू इसे परसों पे डाल दे. कहते हैं कि आज का काम कल पर ना डाले तो उसने कहा फिर परसों पे डाल देते हैं. तो इस तरह से है मुअख्खर करना किसी चीज को, ताखीर में ले जाना, आगे पोस्टपोन कर देना. And its sentence is she says she would like to take a rain check on it and do it in October. हाँ, she says she'll take the rain check on it. इस पर वो rain check मतलब उसको थोड़ी देर के लिए मुअख्खर करेगी and do it in October. और अक्टूबर में दोबारा जो है वो बदतमीजी का आगाज और सॉरी काम का आगाज करेगी जो भी उसने करना है. ऑलराइट, ठीक है, उसके प्लान ऐसे. शाबाश. The second one, Second phrase is draw a blank. draw a blank. आप याद रखिए, मैं इसलिए जरा उसे दोबारा बोलता हूं हमारे व्यूअर्स के लिए कि उसे गौर से सुन ले जरा. ड्रॉ अ ब्लैंक. अब ड्रॉ करना ब्लैंक मतलब कोई काम नहीं किया आपने, ड्रॉ किया. ब्लैंक ड्रॉ किया तो कुछ भी नहीं किया आपने. सो नाकामी हासिल होना जी. कि इसकी सेंस बनती है इसकी. ड्रॉ अ ब्लैंक. जी. Its English meaning is to fail to get a result. To fail to get a result. And its Urdu meaning is nakami hasil hona. शाबाश. And its sentence is I've gone there before, but I've gone there before, but yes, शाबाश. I've gone there before, but नहीं, I've gone there, I've been there before होगा क्योंकि वापस तशरीफ ले आए ना आप. Gone होता है जाकर वापस अभी नहीं आया. My brother has gone. मेरा भाई गया हुआ है to America. अगर आप अमेरिका से होके आए तो I've been to America. Been, फिर been इस्तेमाल करें, पर gone नहीं करेंगे आप. I've been there before. but I'm drawing a blank. Which way should I go? But I'm drawing the blank. Which way should I मैं go? नाकामी का सामना कर रही हूं मैं कि where should I go? मुझे कहाँ जाना चाहिए? I tried to recall her name. मैंने उसका नाम याद करने की कोशिश की, but drew a blank. लेकिन नाकामी हासिल हुई मुझे. बाज़ औक़ात आप नाम सोचते हैं किसी के, यार इससे अच्छा, बाज़ औक़ात इतनी एम्बैरेसिंग होती है सिचुएशन कि दूसरा बंदा आपके साथ इतनी मोहब्बत कर रहा होता है और वो कह रहा होता है जैसे आपको बहुत भरपूर जानता है और आपको उसका नाम नहीं याद होता और आप फिर उसको जो है वो ये बता भी नहीं सकते कि मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं है, वगैरह काफ़ी बेइज्जती हो सकती है. लिहाजा आप जो है वो रिकॉल करने की कोशिश करते हैं उसका नाम. नामों का एक हुजूम है कुछ मेरे आसपास. नामों का एक हुजूम है कुछ मेरे आसपास. दिल एक नाम सुन के धड़कता जरूर है. समटाइम इट हैपन्स कि समटाइम यू आर एसोसिएटेड विद पीपल और आपको कुछ नाम बहुत अच्छे लगते हैं और कुछ लोगों के काम बहुत अच्छे लगते हैं और नाम मैटर नहीं करता. अल्टीमेटली आपका काम मैटर करता है. देखिए, फूल का नाम अगर आप जो है वो रख दें, बैग रख दें या कोई, चलिए बैग तो फिर प्रोडक्टिव चीज होती है, उसका काम जो है वो कूड़ा रख दें, उसका नाम कूड़ा. लेकिन क्या फूल अपनी खुशबू देना छोड़ेगा? फूल रहेगा, उसकी खुशबू आएगी आपको. और इसी तरह से अगर आप किसी बुरी चीज का नाम अच्छा नाम रख दें उसका, तो क्या उसके अंदर अच्छाई पैदा हो जाएगी? नॉट एट ऑल. जो इंसान की हकीकत है वो आश्कार हो जाती है और
चीजें जो होती हैं उसको सही तनाजुर में देखना चाहिए। और राइट, शाबाश, बहुत अच्छे फ्रेजेस थे आपके दोनों जी, फैंटास्टिक। My first phrase is out of the blue. आउट ऑफ द ब्लू बहुत ही कॉमन इस्तेमाल करते हैं यार, आउट ऑफ द ब्लू ही आ गए हो यार, आउट ऑफ द ब्लू ऐसा हो गया है आज मेरे साथ। आउट ऑफ द ब्लू मतलब होता है अचानक में, राइट। Its English meaning is unexpectedly. शाबाश, अनएक्सपेक्टेडली। अनएक्सपेक्टेड होता है तवक्को है, अनएक्सपेक्टेड जिसका तवक्को नहीं है, और अनएक्सपेक्टेडली गैर मतवक्को तौर पर, राइट। अनएक्सपेक्टेडली गैर मतवक्को तौर पर आप करती हैं आउट ऑफ द ब्लू जी। Its Urdu meaning is अचानक. जी, ये आपने पाकिस्तान में अक्सर देखा होगा, अचानक बिरयानी का नाम भी रख दिया लोगों ने। मैं बड़ा हैरान होता हूं कि मतलब वो अचानक पक जाती है कि पकाने वाले अचानक पका लेते हैं उसको, राइट। Now let this phrase is used in sentence. He called me out of the blue after 5 years. He called me out of the blue. 5 साल के बाद तो बंदे शक्लें ही बदल जाती हैं बंदे की। आप जरा देखिए, जो भी वज़राए आज़म आते हैं 5 साल में जो हल्फ ले रहे होते हैं तब, और जब वो घर जा रहे होते हैं, बाजू का हमारे यहाँ तो वो रेयर है कि 5 साल मुकम्मल भी करें। 3 साल हमारी वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशनल उनकी जो ड्यूरेशन है या उनकी जो उनका जो टेन्योर है उसको 3 इयर्स ही होना चाहिए। कोई 3 साल ही मौफिक आते हैं, उसके बाद हम बोर होना शुरू हो जाते हैं कि कोई थरथल्ली मचे, कोई हलचल मचे, और कोई जो है वो नया चेहरा सामने आए। शाम जी, नेक्स्ट, शाबाश। आउट ऑफ द ब्लू बहुत ही शानदार फ्रेज है। हेलो, आपने पूरी दिलचस्पी के साथ सुनना है इस तमाम एक्टिविटी को, प्लीज। My second phrase is एक्सक्यूज मी, आउट ऑफ द ब्लू। सो इन्होंने आपको जो बताया सेंटेंस, ही कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू आफ्टर 5 years, 5 साल बाद अचानक उसने मेरे कॉल कर दी, आउट ऑफ द ब्लू, अनएक्सपेक्टेडली। शानदार फ्रेज है जी। नेक्स्ट जी। My second phrase is hit the roof. Its English meaning is to become very angry. Its Urdu meaning is बहुत गुस्सा करना. शाबाश, हिट द रूफ, छलांग को हिट का, सॉरी, आई बेग योर पार्डन, छत को लगना, मतलब गुस्से से लाल पीले होना और गुस्से से बहुत ही भड़कना, शदीद गुस्से में चले जाना, आपको पता ही है। और वो एक हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई हो रही थी, तो बड़ी लंबी लड़ाई चली। आखिर में हस्बैंड ने ना थक करके कहा, या अल्लाह, या मैनू चुक ले, या बीवी ने कहा या, उन्होंने कहा या भी मैनू ही चुक ले। आपको पता है कि नहीं लड़ाई लड़ सकते आप बीवियों के साथ, और वो मतलब डैडीज होती हैं काफी। सो शाबाश, हिट द रूफ, हिट द रूफ जो है बहुत गुस्सा करना जी। सेंटेंस जी। Now let this phrase is used in sentence. My boss hit the roof when I missed the deadline. शाबाश, कितना ऑफिशियल किस्म का जुमला है। ऑफिस का माय बॉस हिट द रूफ, गुस्से में भरपूर हो गया, आ गया, बहुत गुस्सा किया उसने। When I missed the deadline, missed the deadline, जब मैंने डेडलाइन, कोई काम होगा, कोई एक्सेस असाइनमेंट होगी जिसको कहा होगा कि डेडलाइन ये है, आपको उसके अंदर अंदर करना है, मिस किया आपने, तो बॉस बहुत गुस्से में हुआ, गुस्से में आया। शाबाश, हिट द रूफ। और आप देखिए, जरा सोचा कीजिए कि कौन ऐसा बंदा है जिसके साथ सेंटेंस, इस फ्रेज को इस्तेमाल किया जा सकता है। मामा प्लीज डोंट हिट द रूफ, इतने गुस्से में ना आया करें, आप इतनी अच्छी नहीं लगती गुस्से में आके। तो ये आप इसको बाबा को भी कह सकते हैं। ये यूं सोचा करें कि मैं कहां इस्तेमाल कर सकता हूं, तभी आप जो इसको याद रख पाएंगे। हिट द रूफ है, आउट ऑफ द ब्लू, कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेडली भी होता है, कॉल आ गई यार आई रिसीव योर कॉल टुडे आउट ऑफ द ब्लू, आई रिसीव माय ओल्ड फ्रेंड्स कॉल टुडे आउट ऑफ द ब्लू, मैंने पुराने दोस्त की आज कॉल जो है वो ऐसी अनएक्सपेक्टेडली सुन ली। आई वाज सो सरप्राइज्ड दैट शी स्टिल रिमेंबर्स मी। मैं वैसे मुझे कोई भूल भी नहीं सकता ना, मैं हूं ही ऐसा एवी। दसो यार, तेरे नाल की लगे है, सुरखाब के पारे लगे हुए हैं आपके साथ। ओके, शाबाश जी। आउट ऑफ नेक्स्ट है हमारा हिट द रूफ के बाद नेक्स्ट। My first phrase is on the same wavelength. शाबाश, ऑन द सेम वेवलेंथ। वेवलेंथ आप देखिए, वेव होती है लहर, और वेवलेंथ उसी लहर के ऊपर होना, मतलब उसी वेवलेंथ के ऊपर होना।
सेम पेज, बिल्कुल कहा, ठीक है जी, ऑन द सेम वेवलेंथ। या इस तरह ये भी होता है, लाइक माइंडेड लोग भी होते हैं, जिसे कहते हैं लाइक माइंडेड। यार ये काफी लाइक मीन्स हम ख्याल, जिनके ख्यालात मिलते हैं। आप ऐसे किसी को मिले तो कहें आप कितने मेरे हमारे आपस में ख्यालात मिलते हैं, तो उसने कहा बस आउट ऑफ द ब्लू ही मिलते हैं, वैसे लगता तो नहीं है कि ऐसे होना चाहिए वैसा हमारे साथ जी। ऑन द सेम वेवलेंथ मीनिंग, Its English meaning is thinking alike. थिंकिंग अलाइक, एक जैसे ख्यालात होना। शाबाश। सेंटेंस, Sentence, we work well together because we are on the same page. We are on सेम the same वेवलेंथ। wavelength. हाँ, उसने कहा जी कि कैस जंगल में अकेला है, मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। तो बाज़ औक़ात एक जैसे ख्यालात वाले इंसान जो मिलके बैठते हैं, बात करते हैं, तो अच्छा भी लगता है उनको। और थिंकिंग अलाइक, और वैसे कहते हैं कि ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, कि जो आली दिमाग लोग होते हैं वो एक जैसे ही सोचते हैं। ये आपको अच्छी बात सोच रहे हैं और कोई दूसरा बात कर देना कि यार आपने तो मेरी बात ही छीन ली है, मैं भी यही कहने लगा था, फिर आप ये फेंक दें बात। ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, अजीम लोग एक ही जैसा सोचते हैं। ऑलराइट, मैनू ना मेरी चीजें ट्राई कर दे रहा मेरे उत्ते कि मैं कहूँ बात कहूँ कि सर मैं भी यही सोच रही थी, मैं भी यही सोच रहा था। ऑलराइट, सो हमारे पास है थिंकिंग अलाइक ऑन द सेम वेवलेंथ जी। सेंटेंस क्या जी? We work well together because we are on the same wavelength. We work together, we work well together, हम खूब अच्छा काम करते हैं, because we are on the same wavelength, we are on the same page। शाबाश। My second phrase. सेम पेज की गूंज आपको हमारे पॉलिटिकल अरीना में बहुत मिलती है। जो लोग पॉलिटिकल पार्टी जब कहती थी हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ सेम पेज पर हैं, तो ये बड़ी आपको पॉलिटिकल अरीना में काफी इसकी गूंज मिलती है इस फ्रेज की जी। शाबाश। नेक्स्ट, My second phrase is over the moon. ओ माय गॉड, अब ऐसी खुद ही अंदाजा, ओवर द मून, चांद के ऊपर, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। ओ माय गॉड, ओवर द मून, या हिट द नाइन्थ, ऑन द नाइन्थ क्लाउड, याद है आपको? ऑन द नाइन्थ क्लाउड, ऑन द क्लाउड नाइन, क्या था? ऑन द नाइन्थ क्लाउड था कि ऑन द क्लाउड नाइन है? ऑन द क्लाउड नाइन, मतलब बहुत ही खुशी में बहुत आगे होना, बेहद खुश होना जी। Its English meaning is extremely happy. Its Urdu meaning is behad khush hona. Its sentence is she was over the moon when she got the job. She was over the moon when she knew that she has got 8 band scores in IELTS। माशाल्लाह। अब इसको थोड़ा चेंज कर दें। She was over the moon when she came to know that she has acquired her desired band scores। Acquired, कब? उसकी जो ख्वाहिश वाले, when she came to know that she had acquired her required band scores। ये भी वह बड़ी खुशी वाली बात है। चले डिजायर्ड नहीं, रिक्वायर्ड ही कि मिल जाए जितने बैंड स्कोर चाहिए। शाबाश। नेक्स्ट जी। My first phrase is jump to conclusion. ये देखिए, जंप टू कंक्लूजन्स, फौरन ही किसी बात के आखिर में पहुंच जाना और बड़ी कंक्लूड कर लेना कि बात ऐसे ही है। और ये बड़ी बड़ी आप देखिएगा, ये नुकसानदेह हैबिट होती है। आप फौरन गलती किसी, आपने देखा कि ये गलत हो गया, आपने कहा ये मेरे मुलाजिम ने गलत किया है, तो आप उसको फौरन जो है डांट पिलाना शुरू हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद एहसास होता है कि ये तो मेरे खुद ही मुझसे हुआ है, ये किसी ऐसे फर्ज हुआ जो कि कोई और है, ये नहीं है। तो फिर आप क्या करते हैं? अपोलोजाइज करते हैं। सो जंप टू कंक्लूजन मीन्स, Its English meaning is to make a decision without enough evidence. हाँ, टू मेक डिसीजंस विदाउट इनफ एविडेंस, ज्यादा एविडेंस के बगैर जो है वो किसी फैसले पर पहुंचना जी। Urdu meaning is जल्दी का फैसला. In sentence, don't jump to conclusion before hearing the full story. बिल्कुल, मुकम्मल कहानी सुनने से पहले जल्दबाजी में फैसला ना करें। जल्दबाजी में फैसला, जंप टू कंक्लूजन्स, कितना अच्छा फ्रेज है, जंप टू कंक्लूजन्स। My second phrase is a dime a dozen. Its जी। English meaning is something very common. A dime a dozen, something very common। Dime, D-I-M-E, dime a dozen, Urdu meaning is बहुत आम. very very common,
राइट, बहुत आम. And sentence is these ideas are a dime a dozen. We need something unique. These ideas are a dime a dozen. बहुत ही वाफर मिकदार में है, मतलब आम से आइडियाज हैं ये. We need something unique. हमें किसी यूनिक चीज की जरूरत है. उसने कहा कल जो हुआ है दफतन, उससे मेरा मुकालमा, कल जो हुआ है दफतन उससे मेरा मुकालमा, खूबी इख्तिसार का तजुर्बा कुछ यूनिक है. मतलब दफतन अचानक मेरी आउट ऑफ द ब्लू मेरी गुफ्तगू हो गई, बातचीत होगी किसके साथ? उसके साथ, वो कोई भी है. कल जो हुआ है दफतन उससे मेरा मुकालमा, ऐसे डायलॉग हो गया. खूबी इख्तिसार का मतलब मुख्तसर बात करने की जो खूबसूरती है, तजुर्बा कुछ यूनिक है. बड़ा यूनिक तजुर्बा हुआ हमारा. क्या हुआ? मैंने कहा कि जाने मन. उसने कहा कि क्या कहा? मैंने कहा कि कुछ नहीं. उसने कहा कि ठीक है. सो समटाइम्स अनएक्सपेक्टेड आप जो है वो लोगों से मिलते हैं और आप मुकालमा करते हैं, और वो जो बात आप कहना चाहते हैं वो नहीं कह पाते, और बोंगियां भी मार देते हैं जो कि नहीं मारनी चाहिए. एनीवे, ये तो एक खास कॉन्टेक्स्ट में बात हो गई. तो अब हम देखते हैं जी. शाबाश, आपका सेंटेंस क्या था? अ टाइम अ डजन मीन्स के बहुत आम. These ideas are a dime a dozen, बहुत आम है. We need something unique. शाबाश. The next. My first phrase is by the skin of your teeth. Its meaning in English. By the skin of your teeth. आप देखिए टीथ के साथ स्किन कितनी होती है? बहुत ही ना होने के बराबर स्किन होती है. By the skin of your teeth. Its meaning in English barely managing. Barely managing. Barely mean बहुत ही मुश्किल से किसी चीज को मैनेज करना. Skin of your teeth. जी. Its meaning in Urdu मुश्किल से. Now it's used in sentence. He passed the exam by the skin of his teeth. बड़ी मुश्किल से इम्तिहान 33 नंबरान हाल पास किया उन्हें. बड़ी मुश्किल के साथ उसने he passed the examination. He passed the IELTS. कैसे? By the skin of her teeth और his teeth. राइट, वो फिर अकॉर्डिंगली हो जाएगा. जब सब्जेक्ट लगेगा तो उसका प्रोनाउन भी उसके अकॉर्डिंगली होगा. बाय द ही पास द एग्जामिनेशन बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ. उसने बड़ी मुश्किल से इम्तिहान पास. बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ. एक्सीलेंट फ्रेज. My second phrase is sit on the fence. सिट ऑन द फेंस. अब फेंस क्या होता है बताइए कोई? Spikes, रुकावट. हाँ, कोई एक जो ऐसी फेंस होती जो दो मुख्तलिफ इलाकों को, जो दो जगहों को अलग करती है. राइट. सिट बाय द फेंस, सिट ऑन द फेंस. वो क्या जगह का नाम है जो जन्नत और जहन्नुम के दरमियान आएगी? एराफ. मकाम एराफ आएगा, जिसमें कुछ लोग होंगे एराफ के मकाम पर ठहरेंगे. उनके नेकियां और गुनाह उनके एक जैसे होंगे. या अल्लाह, हमारी दुआ करें सच्चे दिल से, या अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ कर दे. या अल्लाह हमारी बल्कि तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला नेकियों में बदल दे इंशाअल्लाह ताला. जब हम दुआ मांगेंगे अल्लाह से, अल्लाह के लिए क्या चीज है? लेकिन दुआ मांगना एक काम है ना. अल्लाह जब मांगेंगे तब जब महसूस करेंगे कि यार वो कर सकता है सब कुछ. तो जब नेकियों बदल जाएंगे तो फिर आप ऐसे छलांगे मारते हुए जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो चलते हुए उनके पीछे चलते हुए जो है वो उनकी मईयत में इंशाअल्लाह हम जन्नत में दाखिल होंगे इंशाअल्लाह. कह दीजिए इंशाअल्लाह. जब जैसे इंसान सोचता है ना, फिर फंक्शन भी उसका माइंड वैसा करना शुरू कर देता है. जब हम ये सोचते हैं कि हमें उनकी शफाअत नसीब होगी, हमें वो हौसे कौसर से पानी पिलाएंगे इंशाअल्लाह, शराब तहूरा ऐसा शरबत पिलाएंगे कि जो आपने कभी पिया ही नहीं होगा. इतना मुतहर, इतना साफ पाकीज़ा. और तो फिर और वो कहते हैं कि वो पिएंगे तो क़यामत का जो 50,000 साल का दिन है, वो पीने के बाद हमें प्यास लगेगी नहीं. उसके बाद ऐसी खूबसूरत, इतना मज़े का वो जो है वो शरबत होगा जो हम पिलाएंगे, वो पानी होगा जो पिलाएंगे हमें. ये जब आप ये सोचते रहते हैं तो आपका जहन उसी फ्रीक्वेंसी के साथ फिर सोचना शुरू कर देता है, काम करना शुरू कर देता है.
तो इंशाल्लाह जब हम ये सोचते हैं अल्लाह ताला ये हमारे लिए करेगा भी इंशाल्लाह। ऑलराइट जी, वापस चलते हैं जी। Its meaning in English to avoid taking sides. Its meaning in Urdu गैर जानबदार रहना. राइट, गैर जानिबदार रहना। और आपका फ्रेज था Sit on the fence. सिट ऑन द फेंस, गैर जानिबदार रहना, टू अवॉइड टेकिंग साइड्स, किसी साइड को लेना। ये जो जस्टिस होते हैं ना, जो जजेस होते हैं, इनका ये डेजिग्नेशन ये सजेस्ट करता है कि उन्हें दे हैव टू सिट ऑन द फेंस, या इम्पार्शियल रहना है, न्यूट्रल रहना है। लेकिन हमारे तो एक सियासी रहनुमा ने ये भी कहते हैं कि न्यूट्रल तो जो है वो जानवर होता है। तो इनफैक्ट हाँ, नहीं, न्यूट्रल होना बड़ी अच्छी बात है। समटाइम्स आपको न्यूट्रल रहने की जो है वो जरूरत होती है। सो एनीवे, हमारे पास है जो फ्रेज है सिट ऑन द फेंस, गैर जानिबदार रहना। स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस, गैर जानिबदार रहना बंद कर दो। एंड मेक अ डिसीजन, अब फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है। जी, नेक्स्ट। My first phrase is blow your own trumpet. ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट एक साज होता है, कहते अपनी साज बजाए जाना। ब्लो योर ओन ट्रम्पेट मतलब क्या है? Its English meaning is to brag. टू ब्रैग, ब्रेग नहीं है, ब्रैग, BRAG, ब्रैग, ब्रैग करना, राइट। Its Urdu meaning is अपनी तारीफ करना. अपनी तारीफ के पुल बांधना, टू ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, अपनी मार्केटिंग करना। ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, अपने ट्रम्पेट को बजाना मतलब अपनी तारीफ करना। जी, Now its use in sentences. He loves to blow his own trumpet about his achievements. हाँ, he loves to blow his own trumpet, अपनी तारीफ करता है खूब, about his achievements, अपनी कामयाबियों के बारे में। Its translation is वो अपनी कामयाबियों की बहुत तारीफ करता है. शाबाश। My second phrase is shake a leg. Its meaning is hurry up. शेक अ लेग मीन्स जल्दी करना, हरी आप। शेक अ लेग, टांग हिलाना, मतलब कहते हैं ना, जो कहते हैं हरी आप या लुक शार्प, शार्प नजर आओ, मतलब हरी आप, जल्दी कीजिए। शेक अ लेग, ये मिल्क शेक नहीं इसको समझना कि लेग का मिल्क शेक बन गया है। ये शेक अ लेग, शेक होता है हिलाना, Its राइट। Urdu meaning is जल्दी करो. Now its use in sentence is shake a leg or we will miss the train. शेक अ लेग, जल्दी कीजिए, और वील मिस द ट्रेन। अब मिस द ट्रेन का मतलब एक तो लिटरल ट्रेन होती है जो मिस कर देंगे आप, बस मिस कर देंगे, ट्रेन मिस कर देंगे, कैब मिस कर देंगे। एक वैसे भी मिस द ट्रेन मतलब अपॉर्चुनिटी को खो देंगे, मौका जाया कर बैठेंगे। मिस द ट्रेन का मतलब ये भी होता है, राइट, कि भाई एक कहीं कुरान अंदाजी हो रही थी, आपने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया और यू मिस द ट्रेन, राइट। लॉटरी में आपने, अदरवाइज शायद आपके हाथ लगी जाती लॉटरी और आप अच्छा, लॉटरी के लिए भी निकलने का इंतजार। मैंने एक फर्ज से पूछा, कहने लगा सर मैं बेताबी से एक लॉटरी का इंतजार कर रहा हूँ, परसों सर उसकी कुरान अंदाजी हो रही है। मैंने कहा बहुत अच्छा, शाबाश, कोई बात, कोई बुरी बात नहीं है, ट्राई योर लक। तो मैंने कहा लॉटरी ले ली? कहता हाँ, सॉरी सर, लॉटरी तो ली नहीं मैंने। जिसके निकलने का इंतजार बड़ी ही बेताबी के साथ कर रहा है, वो लॉटरी हजरत ने, हुजूर ने अभी तक नहीं खरीदी है। तो इस तरह के लोग भी होते हैं जो जिंदगी में कामयाब तो होना चाहते हैं, लेकिन कामयाबी के लिए उनके पास मंजिल नहीं होती कोई, कि कहां पहुंचना है। कार में ड्राइवर बैठ जाए, उसे कहें बस ले चलो, कहना किथे, कहता जिथे मर्जी ले जाओ। तो आप मतलब कोई आपके पास डेस्टिनेशन नहीं होगा, तो फिर आप किसी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते हैं। ऑलराइट, आगे चलिए, शाबाश। ब्रेक अ लेग। My first phrase is bury the hatchet. बरी द हैचेट, हैचेट होता है कुल्हाड़ी, और बरी उसको दफन कर देना। बरी द हैचेट मीन्स जब कुल्हाड़ी दफन कर दी, मतलब जंगी हालात खत्म हो गए या लड़ाई शड़ाई खत्म हो गई और आपने हैचेट को आपने दफना दिया है, पीसफुल हो गए आप। Its English meaning is to make peace. टू मेक पीस, बरी द हैचेट। Its Urdu meaning is सुलह करना. सुलह करना, शाबाश। That's used in sentence. They decided to bury the hatchets after years of fighting. आफ्टर years of fighting, साल साल की लड़ाई के बाद उन्होंने फैसला किया कि अब हम सुलह कर लें आपस में। शाबाश। My second phrase is walk on eggshells.
ओ माय गॉड, वॉक ऑन एग शेल्स। एग के जो शेल्स होते हैं, जब अंडा निकाल लिया जाए उसके ऊपर चलना। तो आप देखें, चल सकते हैं उसके ऊपर? नहीं चल सकते हैं। तो कितना नाजुक काम होगा अगर आपसे कहा जाए कि इनके ऊपर चलें। तो एक मतलब बहुत एहतियात से चलना, वॉक ऑन एग शेल्स। जी, Its English meaning is to be very careful. टू बी वेरी केयरफुल। Its Urdu meaning is बहुत एहतियात से चलना। जी, उसने कहा ले सांस भी आहिस्ता, कि नाजुक है बहुत काम। यहां सर्कमस्टेंसेस बहुत सेंसिटिव होते हैं ना, हालात बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो आपको गुफ्तगू भी सेंसिटिविटी के साथ करनी चाहिए, बहुत ही ख्याल और एहतियात के साथ करनी चाहिए आपको। ऐसे ही है ना। और उसने कहा ले सांस भी आहिस्ता, कि नाजुक है बहुत काम आफाक की इस कारगहे शीशागरी का। सो आपने एहतियात बरतनी है, वॉक ऑन एग शेल्स, टू बी वेरी केयरफुल। Let's use in sentence. I have to walk on eggshells around him because he gets hit the roof easily. मुझे एहतियात से चलना पड़ता है अराउंड हिम, उसके इर्द गिर्द, बिकॉज ही गेट्स एंग्री इजीली एंड ही हिट्स द Roof. हिट्स द रूफ। राइट। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट। The next, my first phrase is break the bank. ब्रेक द बैंक, बैंक को ही तोड़ देना। ऑलराइट। Its meaning is to cost too much. टू कॉस्ट टू मच, बहुत ज्यादा खर्च करना। सेंटेंस प्लीज। Its sentence is buying the car would not break the bank. Buying this car won't break the bank. इतना कॉस्ट नहीं कर, won't, will not. Buying this car, इस कार को खरीदना इतना कॉस्ट नहीं करेगी आपको। शाबाश। The next phrase is fish out of the water. Fish out of water. Fish out of water, मछली पानी के बगैर, के बाहर। Its मछली meaning पानी is- से बाहर। Its meaning is uncomfortable in a situation. अनकंफर्टेबल इन सिचुएशन। आप देखें, फिश जब पानी से बाहर होती है तो अनकंफर्टेबल फील करती है। उसने कहा था आजकल कुछ माहिए बेआब सा रहता है दिल। माहिए बेआब, फिश आउट ऑफ वाटर, बेआब पानी के बगैर। आजकल कुछ माहिए बेआब सा रहता है दिल। नहीं, उससे पहले था जाने किसकी याद में बेताब सा रहता है दिल। आजकल कुछ माहिए बेआब सा रहता है दिल। सो ये बेताबी, ये जो है वो पानी के बगैर मछली का होना, ये बहुत ही एक अच्छी एक फ्रेज है। अजीब महसूस करना या वियर्ड, फील वियर्ड। फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स अपने कंफर्ट जोन से निकल जाना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को कहते हैं फिश आउट ऑफ वाटर। Its sentence is सेंटेंस। जी, सेंटेंस क्या है? I felt like a fish out of water at the party. हाँ, कहता मैं तो ऐसे लगता था जैसे मछली पानी, मतलब कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था वहां। आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर एट द पार्टी। शाबाश। नेक्स्ट वन प्लीज। My first phrase is know the ropes. नो द रोप्स। रोप होता है रस्सा। नो द रोप्स, रस्सों को, रस्सियों को जानना। मतलब टू अंडरस्टैंड हाउ समथिंग वर्क्स, किसी चीज को जानना कि कोई चीज कैसे काम करती है, किसी चीज को समझना। जी, English meaning to understand how something works. किसी चीज को समझना. राइट, टू अंडरस्टैंड हाउ समथिंग, नो द रोप्स। सेंटेंस प्लीज। Sentence. It took me a इट while. टुक मी अ व्हाइल, It थोड़ा सा took- टाइम लगा मुझे। It took me a while to know the ropes of the new job. टू नो द रोप्स, रूप्स नहीं है बेटा, Ropes. रोप्स। टू नो द रोप्स, रोप्स को जानने मतलब समझने में मुझे टाइम लगा। ऑफ द न्यू जॉब, नई जॉब को समझने में मुझे थोड़ा सा वक्त Time लगा। लगा। कितना अच्छा है। नो द रोप्स मीन्स किसी चीज को समझना, टू अंडरस्टैंड हाउ समथिंग वर्क्स। इट टुक मी अ व्हाइल, थोड़ा टाइम लगा, टू नो द रोप्स ऑफ द न्यू जॉब। शाबाश। Next. Turn a blind eye. टर्न अ ब्लाइंड आई, Meaning to ignore something wrong. आंखें बंद करना, मतलब ब्लाइंड आई। ऐसे टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब किसी चीज से को इग्नोर करना, आंखें बंद कर नजरअंदाज। लेना। राइट। Urdu meaning. टू इग्नोर समथिंग रॉन्ग, किसी बुरी चीज को नजरअंदाज करना। राइट। Urdu meaning नजरअंदाज करना. Sentence. The manager turned a blind eye to his mistake. द मैनेजर, मैनेजर नहीं है, मैनेजर। द मैनेजर turned a blind eye
to his mistakes. मैनेजर ने नजरअंदाज की उसकी गलतियों को मैनेजर ने नजरअंदाज किया। शाबाश। जैसे आप देखें, आप कुछ कर रहे होते हैं ना, गड़बड़ कर रहे होते हैं, तो आप समझते हैं अम्मी अबू ने पता नहीं लगन देता, और नहीं बच्चे हो, they know you. They sometimes only turn a blind eye to your activities. नजरअंदाज कर रहे होते हैं, अदरवाइज उन्हें सब पता होता है आप क्या कर रहे हैं और बैक एंड पे क्या चल रहा है। आप मेरी बात को मानते हैं कि नहीं मानते? प्लीज बताइए। जब आप खुद पेरेंट्स होंगे फिर आपको कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी तो आपको लगता है जैसे मैं चकमा दे गई हूं, दे दिया है मैंने पता भी नहीं चलने दिया और मैंने ये भी कर लिया है, राइट? तो they just turn a blind eye to all the mistakes you're making. Otherwise, they know what's happening around them and what you are exactly doing at that time. Next, see. My first phrase is hit rock bottom. Hit rock bottom. Oh my God. Meaning in English to reach the lowest point. देखो ना, bottom, rock bottom. जो rock का, पहाड़ का जो बॉटम है, उसको कितना मुश्किल काम होगा जिसे आप करना चाहते हैं। Sentence after losing his job, he hit rock bottom. ये hit rock bottom means to reach the lowest point, इंतहाई मुश्किल में। जैसे आप कह सकते हैं quite a few years back, quite a few months back rather, कुछ महीने पहले, the economy of Pakistan hit the rock bottom. आपको पता था ना, डॉलर जो है वो 300 प्लस 350 में, और पाउंड जो है वो 450-500 में पहुंच गया था। You remember or not? So your economy hit the rock bottom. और हमने सरवाइव किया, जबकि हर तरफ से ये प्रोडक्शन थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। बस पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ। और कुछ ऐसी कुव्वतें चाहती भी थी कि ऐसा हो जाए। अल्लाह खाकम बदहान, उनके मुंह में खाक, जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। Like India. पाकिस्तान इंशाल्लाह दुनिया के नक्शे पे मौजूद भी रहेगा इंशाल्लाह। और पाकिस्तान आने वाले 12 साल में बेइंतहा तरक्की भी करेगा, और अल्लाह के फजल करम से इसका नशत स्थानिया होगी, बहुत अरूज का वक्त आएगा। फिर ये मेरी ख्वाहिश भी है, दुआ भी है, और मेरी प्रेडिक्शन भी है इंशाल्लाह। देखिएगा, निचोड़ा खून तेरा जालिमों ने जी भर के, मेरे वतन तेरा फिर भी शबाब बाकी है। पाकिस्तान इंशाल्लाह जो वतन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे कायम हुआ है, मेरा यकीन है मुझे कि वो कभी खत्म नहीं हो सकता इंशाल्लाह। ऑलराइट, सो इंशाल्लाह ये थोड़ी मैंने अपनी प्रेडिक्शन भी दी है। इंशाल्लाह पाकिस्तान अजमतों के जो अजमतें और बुलंदियां हैं उसको छुएगा इंशाल्लाह। After losing his job, he hit rock bottom. In Urdu, after losing his job lose करने के बाद, he hit rock bottom. नौकरी खोने के बाद वो इंतहाई मुश्किल वक्त से गुजरा। और जो मुश्किलात हैं उसके बाद ये आसानियां आती हैं। कभी भी ये नहीं होता कि सारे आसान वक्त चलते रहें, ये सारे मुश्किल वक्त ही चलते रहें। अल्लाह ताला ने जब कुरान मजीद में कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना मअल उस्रि युस्र फइन्ना मअल उस्रि युस्र, यकीनन हर जो है वो मुश्किल के बाद आसानी है, और जान रखो कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। ये आपको यकीन होना चाहिए। जो यकीन है ना, यही इंसान को तक़वियत देता है कि क्या होगा, मतलब यकीन होगा तो फिर आप पुरुम्मीद रहेंगे इंशाल्लाह। My next phrase is run out of steam. Run out of steam मतलब स्टीम खत्म हो जाना। The English meaning is to lose energy. Oh my God, कितना अच्छा है, to run out of steam, run out of steam, run out of budget होता है, run out of money होता है, run out of आपके अंदर जो एनर्जी हो सकता है, run out of energy, किसी चीज को उर्दू meaning is ताकत खत्म होना. The sentence uses he ran out of steam. He ran out of steam. He ran out of steam halfway through the marathon. हाँ, वो आधे रास्ते में ही जो है वो उसकी ताकत खत्म होगी। मैराथन तो बड़ी लंबी दौड़ को कहते हैं। मैराथन के दौरान आधे रास्ते में इसकी ताकत खत्म होगी। हाँ, वो एक आदमी था, वो उसने कहीं दरिया पार कर रहा था, तो आधे दरिया में वो पहुंचा, उसे पता चला कि मेरी हिम्मत जवाब दे गई है, तो फिर वो वापसी जो है वो आधा दरिया जो है वो चला गया।
तो अब देखिए उसकी अकल पर मातम करें कि तू वापस अल्लाह जानते हुए एनर्जी लगा दी है, वही आगे चले जाओ, आधा अगला जो गया बच्चा है। तो ये डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप जिंदगी में जो फैसले करते हैं बाज़ औक़ात आप उसके लिए अगर कहते हैं दीवार से भी मशवरा कर ले, मतलब ये होता है कि किसी भी फर्द से मशवरा करने से आपको कोई अच्छी बात मिल सकती है। शाबाश। रन आउट ऑफ स्टीम मतलब ताकत ही खत्म हो गई, स्टीम अंदर जो है वो खत्म हो गई है। The next is through a curveball. थ्रू नहीं है, Through a curveball, meaning in English to surprise someone with something unexpected. थ्रू अ कर्व बॉल। बॉल तो ही होती है एक, आपको पता है बॉल तो राउंड बॉल होती है, तो वो एक नॉर्मल फिनोमिनन है। कर्व बॉल जो होगी ये थोड़ी डिफरेंट किस्म की डायमेंशन की बॉल होगी, तो ये मतलब इससे आप ये बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात होगी। तो थ्रो अ कर्व बॉल टू सरप्राइज समवन विद समथिंग अनएक्सपेक्टेड, हैरान कर देना किसी को किसी चीज के साथ। जी, The sentence uses the final question in the test. Really threw a curveball at us. द फाइनल क्वेश्चन इन द टेस्ट, आखिरी सवाल ने जो टेस्ट में था, इम्तिहान का really threw, excuse me please, really threw a curve ball at us, उसने हमें वाकई हैरान कर दिया। थैंक यू। स्टार्ट। My first phrase is under your belt. अंडर योर बेल्ट। Its Urdu meaning is हासिल किया या तजुर्बा किया। शाबाश। अंडर योर बेल्ट ये मतलब ये पास आप चीज के आपके पास मौजूद है, ये चीज कोई भी तजुर्बा होगा जो आपने हासिल किया है। अंडर योर बेल्ट। एक्सपीरियंस मतलब अचीव्ड और एक्सपीरियंस्ड, कोई चीज हासिल की है आपने या तजुर्बा किया है आपने जिसका। And sentence is with 2 promotions under his belt, he is very confident. हाँ, 2 प्रमोशन को अंडर इस बेल्ट मीन तो हासिल करनी है उसने, इज वेरी कॉन्फिडेंट। शाबाश। विद 2 प्रमोशंस अंडर हिज बेल्ट ही इज वेरी कॉन्फिडेंट। बहुत अच्छा है, अंडर हिज बेल्ट। राइट जी। My phrase is let the cat out of the bag. कितना बहुत आम शुरू से सुनते आए हैं, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बिल्ली को थैले से बाहर निकालो, मतलब जो राज फाश करना है कर दो यार, जो बताना है बता दो, जरा कहते जरा सांप पकड़ना है काट दे बाहर, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। जी। Its English meaning is to reveal a secret. शाबाश। Its Urdu meaning is राज फाश करना. My sentence is someone let the cat out of the bag about the surprise party. किसी ने सरप्राइज पार्टी की जो है वो राज फाश फाश कर दिया, बेचारे ने सरप्राइज पार्टी देनी थी, उसमें कोई सरप्राइज बाकी नहीं रहा। Someone let the cat out of the bag, किसी ने राज फाश कर दिया about the surprise party, सरप्राइज पार्टी के बारे में। जी, नेक्स्ट। Throw in the sponge, and its English meaning is थ्रो इन द स्पंज, and its English meaning is to give up, and its Urdu meaning गिव अप मीन्स तर्क कर देना, हार मान लेना, गिव अप। थ्रो इन द स्पंज। and जी। its Urdu meaning is har manna, and its sentence is after trying for hours he threw in the sponge. आफ्टर ट्राइंग फॉर आवर्स, घंटों तक उसने मेहनत करने के बाद, कोशिश करने के बावजूद ही करने के बाद ही थ्रू इन द स्पंज, उसने हार मान ली, ही गेव अप। जी। My phrase is hold your horses. होल्ड योर हॉर्सेस, अपने घोड़ों को लगाम दो, मतलब क्या है? Its English meaning is wait a moment. वेट अ मोमेंट। Its Urdu meaning is थोड़ी देर रुके. राइट। Its sentence is hold your horses, let me finish this point, my point. या होल्ड योर हॉर्सेस, थोड़ी देर अपने घोड़ों को लगाम दो, मतलब थोड़ी देर रुके भाई, क्या हवा के दोष पे सवार हैं आप। लेट मी फिनिश माय पॉइंट, लेट मी स्पोकन इंग्लिश में, लेट मी फिनिश माय पॉइंट, अपनी बात को खत्म करने दे मुझे। जी। My phrase is blow out of proportion, जी। meaning to blow exaggerate. out of proportion, In English, its meaning is to exaggerate. to exaggerate। शाबाश। उर्दू blow में- out of proportions, proportion से ही बाहर निकल जाना, out of proportions, right। blow out of proportions, उर्दू meaning is मुबालगा करना. मुबालगा आराई करना, टू एग्जैजरेट, टू ओवरस्टेट, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शंस। Sentence is the issue was blown out of proportion by the media. हाँ, जैसे वो हाइप क्रिएट करना होती है ना, वो भी ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन होती है ना, तो वो कहते हैं कि
the issue was blown out of the proportion by the media. मसले को मीडिया ने मुबालगाराई से पेश किया. शाबाश. The next. My phrase is go with the flow. Go with the flow means हालात के मुताबिक चलना. Go with the flow. Flow के साथ चलना. जी. Its meaning in English to adapt easily. Adapt कर लेना, अपने आप को ढाल लेना easily, आसानी के साथ. हालात के मुताबिक चलना. शाबाश. Don't stress, just go with the flow. हाँ, परेशान ना हो, but just go with the flow. Flow के साथ चलें. शाबाश. My first keyword is be in the driver's seat. Be in the driver's seat. ड्राइवर के सीट पर होना means काबू में होना. ड्राइवर की सीट पर जब बंदा बैठता है तो स्टीयरिंग उसके हाथ में होता है, ब्रेक्स भी उसके पाँव में होती हैं, और गियर कब चेंज करना है ये भी उसके इख्तियार में होता है. राइट. Its meaning is to be in control. To be in control. Its Urdu meaning is काबू में होना. जी. Now its used in sentence is she is in the driver's seat of the project now. She is in the driver's seat. हालात के उसके हालात काबू में है of the project now. प्रोजेक्ट के हवाले से. Alright guys and girls, देखिए ड्राइवर सीट पर जो है वो कौन बैठा होता है घर में हस्बैंड वाइफ में से? कौन होता है जो ड्राइवर सीट पर है? जी बताइए प्लीज. योर मदर और फादर? जी मदर. ये सच बोला है इन्होंने, सच बोला जी. मदर. ये आप थिंक है ना, आप सोचती हैं ऐसा ही है, लेकिन उसमें चीजें जरा मुख्तलिफ हैं. जी मदर. आप देखिए असल में वो कहते हैं कि ड्राइवर सीट पर हस्बैंड को होना चाहिए, मतलब शौहर को होना चाहिए या फादर को होना चाहिए अगर बच्चों के पर्सपेक्टिव से देख दो. लेकिन ये अलग बात है कि सम टाइम बीवी ही शौहर बन जाती है कि वो शौहर बन के फैसले कर रही होती है. इसमें कोई गलत बात नहीं है कि अच्छा फैसला होना चाहिए, चाहे वो हस्बैंड करे या वाइफ करे. फैसला स्टैंडर्ड पर होना चाहिए और वो ठीक होना चाहिए. अगर वो ठीक है फैसला तो फिर कोई भी करे तो कोई एतराज की बात नहीं है. लेकिन जो कुरान मजीद कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रिजालु कव्वामूना अलन-निसा, अल्लाह ताला ने कव्वाम बख्शा है खवातीन पर, मतलब उनको थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया है. ये आप देख लें फिजिकली भी वो ज्यादा ताकतवर होते हैं, मर्द जो है वो ज्यादा ताकतवर होते हैं, और इसी तरह से जो है वो इंटेलेक्चुअली भी स्ट्रांग ज्यादा होती हैं. फिर उनकी सोशली भी बहुत स्ट्रांग होते हैं क्योंकि उनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है. तो इस तमाम पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हस्बैंड को ड्राइविंग सीट पर होना चाहिए, और बाज़ औक़ात वाइफ्स होती हैं. तो अगर हस्बैंड ड्राइविंग सीट पर नहीं है तो फिर कोई ना कोई तो ड्राइविंग सीट पर बैठेगा ना. तो वो फिर क्या होता है, अगर वाइफ इज मैच्योर इनफ टू बी ऑन द ड्राइवर सीट, देयर इज नो हार्म इन इट. और बहुत सारे लोगों ने यहाँ हमारे पास एतराफ़ भी किया है कि उनकी अम्मियाँ ड्राइवर सीट पर हैं. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच गाइस एंड गर्ल्स, एंड इंशाल्लाह वी विल सी यू टुमारो with new exercises. और जितने हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, और I know they keep supporting us. Don't forget to like these videos and write in the comments about these videos and share these videos with your friends as well. All the best. God bless you all. Thank you very much.